Hello, dear friends. I welcome you all on my channel Switch It. Today, we are going to learn lesson number 6 Human Resources Part 2. In the previous part, we understood what is human resource, what is census, what is total India's लैंड एरिया, दैन वर्ल्ड में उसका कौन सा नंबर है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the next few points of this lesson. So let us start from there. This detail we have seen the population of India in 2001 121 करोड़ जो 2011 में थी. उनके रीजंस क्यों इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इंडिया में वो भी हमने डिस्कस किया था. और पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण which problems arises in India that we have discussed lastly related to food, water, housing, environmental pollution, conservation, employment, traffic, consumptions, सारी problems होती है. Therefore, schemes, policies, etc. are made to deal with such problems in India. Now, we are going to learn about the population density. The next point from where we are going to start, population density means how congested the people of India live. About that we are going to learn. So let us start. The average number of people living in a per square kilometer area is known as the population density of that area. What is population density? So 1 square kilometer यानी एक स्क्वायर किलोमीटर यानी एक बॉक्स जो 1 किलोमीटर का हो चारों साइड से, उसमें जितने इंसान या जितने लोग रहते हैं वो कहलाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. Population density is associated with social, economical, geographical conditions. It is high in the fertile alluvial plains of rivers, deltas, industrial area, etc. That we all know कि जहाँ पे अच्छा एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल हैविंग गुड फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर नियर द रिवर्स, देन डेल्टास जहाँ पे भी सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, crops can be easily grown by using different farming methods. तो वहाँ पे population बहुत ज़्यादा होती है. Population density is low. कहाँ पे वो कम होती है? In deserts, in mountainous areas, forest regions, due to unfavorable conditions. वहाँ पे लाइफ इतनी ईजी नहीं होती, तो वहाँ पे population density काफ़ी कम है. In the mountainous area, in the deserts यानी कि जहाँ पे रन प्रदेश है वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली अवेलेबल नहीं है. सो देयरफॉर वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है. डेंसिटी ऑफ population is affected by various geographical factors like altitude, climate, weather, topography, types of crops, availability of water, minerals, energy sources, etc. These are the reasons or factors that affect density of population. Altitude means mountainous area जहाँ पे काफ़ी हाइट होती है वहाँ पे लिविंग रेजिडेंट्स होते हैं. देन क्लाइमेट, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड then also it will be difficult for the people to survive. Then weather, types of crops, availability of water, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. Educational facilities, health, transport facilities, employment opportunities, urbanizations, etc. also affect population density. जितनी population density ज़्यादा होगी वहाँ पे facilities provide करना गवर्नमेंट को भी काफ़ी मुश्किल होगा. ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल फिर नहीं होगी. द 5 states ऑफ इंडिया दैट हैव द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी आर बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. ये ऐसे 5 states हैं जहाँ पे
पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग रहते हैं इस स्टेट में। द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात दैट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन: सूरत, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, नवसारी। ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात के ऐसे है जहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई है। द 5 हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. The 5 most highly populated districts of Gujarat: अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बनासकांठा. ऊपर जो था वो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो लोगों की रहने की अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर. और यहाँ पे ओवरऑल जो हमने देखा कि हाईली पॉपुलेटेड, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, तो वो सारी बातें हमने सीखी. द 5 लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर. अब सबसे कम लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ऐसे 5 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज, वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड सिक्किम. Now we shall learn about birth rate. What is birth rate? The total live births in 1 year per 1,000 persons in a given area is the birth rate. Let us understand in detail what is birth rate. Birth rate यानी जो लोगों का बर्थ हो रहा है, छोटे बच्चों का, वो कि कौन से एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है, कौन से एरियाज़ में काफ़ी कम है, ये जानने के लिए बर्थ रेट मेज़र किया जाता है. द टोटल लिव बर्थ्स इन 1 ईयर, एक साल में जितने नए बर्थ हुए हैं बच्चों के, उनका जो रेट, ओवरऑल रेट, वो है बर्थ रेट. इंडियंस हैव बीन exercising family planning for quite a number of years now. Therefore, the birth rate has been constantly declining. Due to the government programs and policies, लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि there should not be a very big family. एक स्मॉल फैमिली हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, ये अवेयरनेस अब सब में आई है. तो अब सभी घरों में बहुत सारे बच्चे नहीं होते. पहले के ज़माने में 8-10 बच्चे एक घर में होते थे. नाउ वी आर द नेशन वेयर फैमिली हैज़ ओनली 1 or 2 kids in their home. So that is birth rate. However, in rural areas, अभी भी विलेज में जो लोग रहते हैं वो ये बात समझ नहीं पाते. And family planning is much lesser in rural areas due to the lack of education, health facilities, poverty, unemployment, ignorance about the means of birth control. So that's why the birth rate is still high in villages. Villages में birth rate बहुत ज़्यादा है comparatively. cities में वो काफ़ी कम है क्योंकि लोग वहाँ पढ़े लिखे, एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे समझदार हैं. वो समझते हैं कि छोटा फैमिली अच्छे से अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर सकता है. सो दैट्स वाई दे हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल इन देयर फैमिली. ना वो तो बात हुई बर्थ डेट की. अब डेथ रेट. नाउ वी शैल लर्न अबाउट डेथ रेट. द नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर पर 1,000 पर्सन. 1,000 पर्सन में से कितने लोग मरते हैं उसे डेथ रेट कहा जाता है. इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म्ड एज डेथ रेट व्हेन, सिंस व्हाटएवर इज बॉर्न मस्ट डाई, डेथ रेट कैन नेवर बी ज़ीरो. डेथ रेट है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, और वो ज़ीरो कभी हो नहीं सकता. However, various researches, medical treatment, medicines, vaccinations, control over diseases, new technology have brought down the death rate.
पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था कि लोग काफ़ी कम उम्र में ही मर जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई इतनी मेडिसिन्स, वैक्सीनेशंस, इतनी अवेयरनेस या मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं थी। पर अब वो गांव के लोगों को भी फ्री में अवेलेबल है, तो अब डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है पहले के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइग्रेशन। व्हाट इज़ माइग्रेशन? माइग्रेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रूरल में से अर्बन एरिया में जाना, गांव में से सिटीज़ में जाना, वो होता है माइग्रेशन। इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ बिजनेस और अदर नीड्स, उसे कहा जाता है माइग्रेशन। व्हेन ह्यूमन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस फॉर देयर लिवलीहुड और फॉर देयर प्रोग्रेस, पैसे कमाने के लिए या अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए वो रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में आते हैं, उसे माइग्रेशन कहा जाता है। रूरल पॉपुलेशन इज़ अट्रैक्टेड टू अर्बन एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। क्यों लोग रूरल में से अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं? टू गेट गुड एजुकेशन, टू गेट एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब ढूंढने के लिए, अच्छा एजुकेशन पाने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि सिटी एरियाज़ में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे काम आपको मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, इसी के कारण माइग्रेशन होता है। करंटली 62% ऑफ गुजरात पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरिया। अभी हम बात करें गुजराती की, तो 62% लोग विलेज में रहते हैं और 38% लोग अर्बन एरियाज़ में यानी डेवलप्ड एरियाज, सिटीज़ में रहते हैं। नाउ पॉपुलेशन कंपोजिशन। द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस कैटेगरीज। जो भी पूरे देश की पॉपुलेशन है उसे कैटेगरीज में डिवाइड करना, वो चाहे फिर मेल फीमेल हो, वो चाहे एज के हिसाब से है, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने एल्डर्स हैं, कितने यंग लोग हैं इंडिया में, वो कितने रूरल में रहते हैं, कितने अर्बन में है, वो रिलीजन, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम्स कितने हैं, वो। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों में कैटेगराइज करना, कैटेगरी वाइज उन्हें डिवाइड करना, वो होता है पॉपुलेशन composition. So I hope you must have understood what is population composition. The classification of total number of people or total population into various categories is called population composition. Now the first composition, that is age structure. कितने उम्र के लोग कितने इंडिया में रहते हैं वो। The population of the nation comprises of 3 age group. तो 3 प्रकार के एज ग्रुप है। फर्स्ट चिल्ड्रन, यानी कि जो जिनका बर्थ हुआ है वहाँ से लेके 14th ईयर तक। अगर आप 14th ईयर के हैं तो आप चिल्ड्रन कैटेगरी में आते हैं। अगर आपकी उम्र 15 to 59 है, 15 ईयर्स से 59 ईयर्स, तो आप एडल्ट में आते हैं। और उसके ऊपर जो लोग होते हैं बियॉन्ड 60, दोज एज 60 years or more or above, according to 2001 census, 35 to 40% population is below 18. 35 से 40% लोग इंडिया में 14 साल से कम हैं, 14 years से छोटे हैं। 7 to 10% इज सीनियर सिटीज़न। 7 से लेकर 10% तक लोग 60 years के ऊपर के हैं इंडिया में। एंड रेस्ट इज़ एडल्ट। अगर हम एवरेज कैलकुलेशन करें, 40% चिल्ड्रन, 10% एडल्ट, तो 50% यूथ है, यानी कि एडल्ट 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक की उम्र के लोग। जापान हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन। जापान में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। वो चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, या खाने पीने की चीज़ों में जो हाइजीन मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई दे आर हैविंग हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेक्स रेशियो।
व्हाट इज सेक्स रेशियो? इट इज़ अ कॉम्पोजिशन बिटवीन मेल एंड फीमेल. कितने मेल है कितने फीमेल है. To understand that, we need to understand the point sex ratio. Sex ratio can be defined as the number of females per 1000 males. अगर 1000 मेल है तो उनके सामने कितने फीमेल्स हैं. क्या वो 1000 से ज़्यादा है, क्या वो 1000 से कम है. ये कंपैरिजन जो होती है उसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो. A sex ratio has been constantly reducing since 1951. 1951 से वो रेशियो कम ही हो जा रहा है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि गर्ल्स का भी बर्थ काफ़ी ज़रूरी है. इंडिया में लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे थिंक दैट दे शुड हैव अ बॉय इंस्टेड ऑफ गर्ल्स इन देयर फैमिली. सो उसी के कारण ये सेक्स रेशियो काफ़ी कम हो गया है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जब 2011 में जब ये गिनती हुई थी, सेंसस हुआ था लोगों का, तो उसमें ये पाया गया था कि 1000 मेल के सामने 940 फीमेल्स हैं. तो वो काफ़ी कम माना जाता है. द सेक्स रेशियो ऑफ गुजरात इज़ 918, जो उससे भी कम है. केरला हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज़ 1084, यानी कि वहाँ पे लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है. उससे ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ पे ज़्यादा नंबर में है और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिटरेसी. एन इंडिविजुअल हु इज़ 6 years old or above, who can read, write and understand any one language is said to be literate. लिटरेट किसे कहा जाता है? जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो और वो कोई एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो, तो वो लिटरेट माना जाता है. और जो ये काम नहीं कर सकता उसे इलिटरेट कहते हैं, यानी कि एजुकेटेड और उसके सामने अनएजुकेटेड. The literacy rate of India has been rising constantly in India and this is a positive sign. पहले की कंपैरिजन में अब ये काफ़ी ज़्यादा है लिटरेसी रेट, यानी मोर नंबर ऑफ पीपल आर एजुकेटेड इन इंडिया नाउ कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स. 1901, यानी कि 1901 ईयर में, बिफोर द इंडिपेंडेंस, लिटरेसी रेट कितना था? 5.35%, यानी कि 100 में से 5 लोग ही पढ़े लिखे होते थे, जो 2011 में 74% है. यानी कि 100 में से 74% लिटरेट, वो अच्छे से लिख पढ़ सकते हैं कोई एक लैंग्वेज. केरला में वो हाईएस्ट 93.91. गुजरात का रेट 2011 में 79.31% था. नाउ occupational structure. This is divided into 2 groups: earning population and dependent population. Occupational structure, कितने लोग इंडिया में काम करते हैं, कितने नहीं करते, वो कैलकुलेशन को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है. जिनके 2 ग्रुप हैं: अर्निंग पॉपुलेशन, जो लोग कमाते हैं वो, और दूसरा डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो लोग दूसरों के सहारे अपनी लाइफ जीते हैं वो. ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, द अर्निंग पॉपुलेशन इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही है, तो अर्निंग पॉपुलेशन जो क्राइटेरिया में लोग हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं. नाउ चेंजेस इन द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. किस टाइप के चेंजेस पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में है, यानी कि कंपैरिजन, चाहे वो एज के हिसाब से हो, मेल फीमेल हो और कोई भी. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंजेस इन द population composition are of 2 types. Quantitative change.
Rise and fall in population count is known as quantitative change, क्योंकि वो कभी भी सेम नहीं रहता. राइज एंड फॉल, कभी काफ़ी नंबर बढ़ते हैं तो काफ़ी नंबर कम भी होते हैं पॉपुलेशन काउंटिंग में. तो ये जो चीज़ है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज. सेकंड, रीजंस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन. क्योंकि अगर 10 साल पहले कोई विलेज में अगर कितने लोग हैं वो काउंट किया हो, 10 साल के बाद उसमें से कई लोग की डेथ भी हो जाती है, कई लोग की मैरिज हो के वो लेडीज़ अपने घर को, गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चली जाती है. जो यूथ है, यंग पीपल है, वो जॉब पाने के लिए या बिज़नेस करने के लिए सिटीज़ में चले जाते हैं. तो ये लोगों की संख्या कम हो जाती है उस विलेज में से. और उनके सामने वहाँ पे कितने नए बर्थ हुए हैं, कितने नए बच्चों का जन्म हुआ है, वो लोग इंक्रीज़ होते हैं. तो वो कभी सेम नहीं होता और इसीलिए उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव चेंज. नाउ क्वालिटेटिव चेंज. In qualitative change, the changes observed in the health and education indicate qualitative change. What is there in qualitative change? So two factors are there. First of all, education. पढ़े लिखे लोग, अब उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज़ अ गुड साइन. एंड सेकंड, हेल्थ वाइज. पहले अगर देखो बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो लोगों की जो एवरेज एज होती थी वो सिर्फ 50-60 ईयर्स होती थी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों में काफ़ी डिसीज़ के ट्रीटमेंट ना होने के कारण उनकी आयु कम होती थी. पर अब वो हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी है. दिस चेंज ऑल्टर्स बिहेवियर, लाइफस्टाइल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. द मेन रीजंस responsible for these changes are dedication, hard work, patriotism, enthusiasm, courage, etc. These factors bring about the socio-culture changes. सारी चीज़ों की नॉलेज, अपनी कंट्री, अपने फैमिली, अपने गांव के प्रति जो डेडिकेशन है होता है वो, यानी कि कुछ अच्छा करना इन सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो स्कूल के लिए हो, अपने सोसाइटी के लिए हो, अपनी गांव के लिए हो, वो अब लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. दोज आर द गुड क्वालिटी.